सीधे रुख करेंगे सदन की कार्यवाही का। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू आकर बैनर लेकर आना ये संसद की परंपराओं और मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। और कुछ मान्य सदस्य तो वेश बदल कर संसद में जिस तरीके से पहनकर आते हैं, मेरी उन मान्य सदस्यों को चेतावनी है। संसद या संसद के परिसर में मुझे कई मान्य सदस्यों ने मिलकर और लिखकर दिया है कि संसद भवन और संसद परिसर की पवित्रता बनी रहनी चाहिए, मर्यादा बनी रहनी चाहिए। लेकिन आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए। आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें। आप सदन नहीं करना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा की कार्यवाही इस वक्त चल रही है, सुनते हैं क्या हो रहा है। राज्यसभा डेटेड 24 September 2004 under Rule 266 of the Rules of the Procedure and Conduct of Business in the Council of States. I would like to make the statement regarding status of implementation of the recommendations contained in the 26th report of the Standing Committee on Rural Development and Panchayati Raj pertaining to demand for grants 2026 and 27 in respect of Department of Land Resources, Ministry of Rural Development, as mentioned before my name at serial number 3, sub 2 in today's revised list of business. Thank you. Through Dr. L. Murugan ji. Respected Chairman sir, with your kind permission, I rise to make a statement regarding status of implementation of the recommendations contained in the 22nd report 18 Lok Sabha of the Department related Parliamentary Standing Committee on Communication and Information Technology on review of mechanism to curb fake news pertaining to the Ministry of Information and Broadcasting. Thanks. Statement regarding government business through Dr. L. Murugan ji. Respected Chairman sir, with your kind permission, I rise to announce that the government business during the week commencing from Monday, the 3rd August 2026 will consist of number 1, consideration of any items of government business carried over from today's order paper. It contains consideration and passing of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill 2026. Number 2, consideration and return of the Supreme Court number of judges Amendment Bill 2026 after it is considered and passed by Lok Sabha. Number 3, consideration and passing of the registration of births and deaths Amendment Bill 2026 after it is considered and passed by Lok Sabha. Number 4, consideration and passing of the following bills after they are introduced, considered and passed by the Lok Sabha. Number 1, the Indian Statistical Institute Bill 2026 and the Bankers Books Evidence Bill 2026. Number 5, consideration and return of the appropriation bill relating to demands for excess grants for the year. और आपको हम जो दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं वो विपक्ष के तमाम सांसदों के प्रदर्शन की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं। और देखिए उनके हाथों में बैनर है। बैनर पर क्या लिखा है? अमित शाह संसद से गायब क्यों? लगातार इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं और इस तरह का प्रोटेस्ट भी हमें देखने को मिला, कल भी देखने को मिला। समाजवादी पार्टी के लोगों ने अलग तरीके से किया और अभी आप देख सकते हैं तस्वीरों में तमाम सांसद संसद परिसर के अंदर ही यानी कि सदन के बाहर वो इस वक्त ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आमोद राय हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। आमोद, लोकसभा फिर 12 बजे के लिए स्थगित, वहीं दूसरी तरफ अभी भी हम देख रहे हैं कि विपक्ष के सांसदों का प्रदर्शन लगातार जारी है और इस बार सवाल तो अमित शाह को लेकर। बिल्कुल, देखिए जो प्रश्न सदन के बाहर विपक्ष उठा रहा था उसी प्रश्न को लेकर सदन के अंदर भी गया था। कांग्रेस और तमाम जो विपक्षी दल हैं गृह मंत्री की अनुपस्थिति को मुद्दा बनाकर लगातार ये मांग करें कि गृह मंत्री सदन में आए, बयान दें और ये बताएं कि छात्रों पर किसने गोली चलवाया। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी चंदा चोरी मसले को, अयोध्या में जो चंदा चोरी हुआ था उस मसले को बढ़ा चढ़ाकर सदन में लगातार अपनी मांग कर रही है कि इसमें कार्रवाई होनी चाहिए और इसमें
जो इसमें जो शामिल है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तो ये दोनों इशू आज लोकसभा में जब बाहर प्रदर्शन खत्म करके सारे सांसद अंदर गए और अंदर में जाकर जैसे ही स्पीकर अपने चेयर पर बैठे तो लगातार इन्हीं दोनों विषयों को लेकर हंगामा होता रहा और उसके बाद सदन की कार्रवाई 1 घंटे के लिए स्थगित करनी पड़ी। तो कुल मिलाकर आज जो स्थिति है वो देखने में यही लग रहा है कि पिछले 3-4 दिनों से जो स्थिति बनी हुई है लगातार उसी को आगे बढ़ाते हुए आज विपक्ष जो है फिर से हंगामा करता रहेगा और सदन की कार्रवाई का कोई बीच का रास्ता निकलता हुआ दिख नहीं रहा। बिल्कुल फिलहाल तो कोई रास्ता निकलता हुआ दिख नहीं रहा है। ऑपोजिशन अपनी डिमांड पर अड़ा हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी लगातार जेन जी के समर्थन में बयान देने की कोशिश करते हुए और यह कहते हुए कि जो मौजूदा नेतृत्व है, जो सरकार है, वो जेन जी से कट चुकी है, पूरी तरह से अतीत की तरफ ज्यादा देखती है। और कुल मिलाकर हो क्या रहा है ये हम आपको बता रहे हैं। लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। दिनेश गौतम हमारे साथ, हमारे सहयोगी भी इस वक्त मौजूद हैं। दिनेश, देखिए फिर वही कल परसों वाली तस्वीरें ही सामने आ रही हैं। लोकसभा में वही कहानी बार बार रिपीट होती हुई दिख रही है। विपक्ष का हंगामा, एक बार फिर लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है, वो भी तब जबकि एंटी पेपर लीक बिल संसद के दोनों सदनों से पास कराया जा चुका है। लेकिन अब हंगामा बरपा है कि आखिर गैर मौजूद क्यों हैं गृह मंत्री अमित शाह। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सांसद चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाते हुए ऐसा लगता है कि एक बिसात बनाई गई है, एक जैसे चक्रव्यूह बनाया जाता है कि ये जो पेपर लीक से संबंधित मुद्दा है उसमें उसके जो फ्रिंज एलिमेंट्स भी साथ में लाए गए हैं, उसकी पेरीफेरी में जो मुद्दे हैं वो भी साथ में लाए गए हैं, जैसे पैलेट गन का मुद्दा, छात्रों पर बल प्रयोग का मुद्दा और उसको लेकर गृहमंत्री से जवाब की मांग। वरना गृहमंत्री के खिलाफ एक रणनीति वो तो दिखाई दे ही रही है, लेकिन ये भी रखा गया है साथ में कि इसके बाद अगला मुद्दा कौन सा बड़ा करना है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि चढ़ावा चोरी को पैरेलल लेकर चला जा रहा है विपक्ष की तरफ से। हालांकि आज ये कहा जा रहा है कि गृहमंत्री आज सदन पहुंच सकते हैं जन्म मृत्यु पंजीकरण के संदर्भ में जो बिल लेकर सरकार आ रही है उस संदर्भ में बात करने के लिए। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि एक ज़रूर पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। अगर आप कंपेयर करें, कल जब इस वक्त एडजर्न किया गया था लोकसभा को तो सीधे शून्यकाल को भी पास कर दिया गया था और ये लगता है स्पीकर को दिखाई दे रहा था उस वक्त कि आज शून्यकाल भी नहीं चल पाएगा। आज कम से कम ये दिखाई दे रहा है उसके कंपैरिजन में कि अभी ज़रूर एडजर्न की गई है लेकिन शून्यकाल के समय लोकसभा एक बार फिर से बैठेगी और ये देखेगी कि कार्य चल सकता है, सुचारू चल सकता है। स्पीकर ये बात देखेंगे तो शायद। दिनेश, आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जरा जो बीच में पीसीआर से प्ले हो रही हैं, वो तस्वीरें आप देखिए। ये जो पप्पू यादव हैं आज बिल्कुल साधु का भेष बनाकर बीच में बैठे हैं, दान पात्र रखा हुआ है और बारी बारी से विपक्ष के तमाम सांसद वहां आ रहे हैं और चंदा डालते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब पूरा एक तरह का हम इस वक्त ड्रामा होते हुए देख रहे हैं और संसद की मर्यादा बनी रहनी चाहिए। स्पीकर ओम बिरला की तरफ से अभी कहा गया, मतलब संसद की कार्यवाही को, लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करने से ऐन पहले कि कुछ जो सांसद हैं वो भेष बनाकर आ जाते हैं, ये नहीं होना चाहिए और एग्जैक्टली वही होता हुआ नजर आ रहा है। और ये पहली बार नहीं है ना, पप्पू यादव उस दिन भी जब विरोध के लिए उन्होंने सिर पे पट्टी बांधी हुई थी, हाथ में लठ लेकर पहुंच गए थे वो। और वो लठ लेकर पार्लियामेंट के भीतर तक जाने की कोशिश कर रहे थे और उस समय वहाँ गार्ड से उनको रोका था और ये कहा था कि ये ठीक नहीं रहेगा, आप ये क्या कर रहे हैं, आप ये लठ लेकर अंदर नहीं जा सकते हैं। तो उस दिन तो वो लठ लेकर और सिर पे पट्टी बांधकर ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि छात्रों के साथ बल प्रयोग हुआ और चंदा चोरी के मामले में, चढ़ावा चोरी के मामले में ये स्थापित करने के लिए कि अंदर के लोग भी घुले मिले हैं, वो आज पुजारी बनकर पहुंच गए। तो ये जो हर दिन, और ये इसी बात के लिए आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, आज स्पीकर ने वार्न किया कि संसद की मर्यादा संसद परिसर के भीतर और सदन के भीतर दोनों ही ये नहीं होना चाहिए और ये गरिमा के अनुरूप काम नहीं किया जा रहा है। और मैं इसकी चेतावनी देता हूँ और ये गंभीर है कि सिर्फ ये नहीं कहा गया है कि आप ये जो कर रहे हैं ये अनुचित है, उन्होंने कहा कि मैं चेतावनी देता हूं कि जो वेश बदल कर लोग आ रहे हैं और यहाँ पर ये काम कर रहे हैं जो कि संसद की गरिमा, मर्यादा और शुचिता के अनुरूप नहीं है, उनको मैं चेतावनी दे रहा हूं। तो ये भी एक्सपेक्ट कीजिए कि अगर आप पप्पू यादव ऐसा ही करते रहते हैं, या हो सकता है अभी तक जो उन्होंने कर दिया है ऑलरेडी उसकी बिना पर कोई कार्रवाई उन पर होती हुई आप देखें।